Good morning, dear students. Today, I'm here to tell you about the topic of metals, chemical properties of metal, class 10, science, chapter number 3, metals and non-metals. So we were doing the chemical properties of metals. So many properties we have studied, the chemical properties of in metal. We have studied what happens when metals reacts with the oxygen, what happens when metals react with the water, what happens when metals react with the acids. Now next is what happens when the metals reacts with the metal salts. Metal salts means like copper sulfate, silver nitrate, zinc sulfate. These are the metal salts. So how can they react with? The first reaction with the metal salt, the first zinc is the metal and copper sulfate is the metal salt solution. So what is the name of this solution? The name of this solution is copper sulfate. When zinc is reacted with the copper sulfate solution is of blue color solution. So this blue color fades away. The zinc sulfate plus copper will be formed. अब now this copper is of orange color. ये जो कॉपर है ये ऑरेंज कलर का होता है, ये ब्लू कलर इसका फेड अवे हो जाता है. So why this reaction happens? In the first chapter we also studied about this because zinc is the more reactive than the copper. Copper is also a metal, zinc is also a metal. So zinc is more powerful, more reactive that it can displace copper from this solution. और यहाँ पर आकर खुद लग जाता है कि इसमें से इसने कॉपर को डिस्प्लेस किया और खुद इसकी प्लेस पे आके लग गया. So this reaction is also known as the displacement reaction. In the first chapter we studied this reaction also. So this way we can say second reaction Fe plus CuSO4 gives you FeSO4 plus Cu. Here I have not written the state symbol. Please write it by yourself. Third is the Cu plus AgNO3 gives you CuNO3 twice plus Ag. This is the copper nitrate plus silver. So iron is more reactive than the copper. That is why it can replace this. And copper is more reactive than the silver. That is why copper can replace this silver. So these are the reactions with the metal salt. So how this reaction will occur if the reaction is more reactive than the metal? If the metal is more reactive than the metal salts, जो metal salts में जो metal है उससे ज्यादा reactive होगी, then it will replace this. उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है रिएक्शन विद द क्लोरीन. कि क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है. क्लोरीन इज द गैस एंड सोडियम इज द वेरी रिएक्टिव मेटल कि ये तो हर किसी के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ और कोल्ड वाटर के साथ हाईली वॉलेंट रिएक्शन करती है. तो Na अगर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगी इट विल फॉर्म्स द क्लोराइड. सो सिंपली मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन का एग्जांपल दिया है सोडियम क्लोराइड. And what happens the next reaction with the hydrogen? Sodium when reacts with the hydrogen gas, it will forms the hydrides. So it is the sodium hydride. This is again the solid form reaction with the hydrogen gas. So when metals reacts with the chlorine gas, they forms the chlorides. And when metals reacts with the hydrogen gas, they forms the hydrides, corresponding hydrides. So gold and silver and platinum, they are the very least reactive metals that they cannot react with all these metals. And some metals which can react with metals and some of these are not react. So the scientists create is the reactivity series of the metal. How they form the reactivity series of the metal? Which metal is most reactive? Which metal is the least reactive? From the nature, we can also observe this. There are some metals which occur in the फ्री स्टेट इन द नेचर लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, वो हमें फ्री स्टेट में मिल जाती है, जैसे है वो वैसे मिल जाती है. बट सोडियम हमें फ्री स्टेट में नहीं मिल सकती, इतनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है. अभी हम आपको बता रहे थे कि सोडियम मेटल को लैब के अंदर भी हमें केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करना पड़ता है. वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है. तो वो एयर में फ्री स्टेट में कैसे मिलती है? वो कंबाइंड स्टेट में मिलती है. जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड में से सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेटलर्जी. जो आपका अभी ईयर आपने नहीं पढ़ना, वैसे वो आपके सिलेबस में है लेकिन इस ईयर वो सीबीएसई ने कट कर दिया है. मेटलर्जी क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स. की नेचर में जो ओर्स हैं, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, उसमें से मेटल्स को हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज द मेटलर्जी, राइट.
सो अब यहाँ पे इन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनाएगी कि कौन सी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, कौन सी लीस्ट रिएक्टिव है, विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज केमिकल प्रॉपर्टीज, कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बनाई गई है कि कौन किसके साथ। अब जो सोडियम है, सोडियम हर किसी के साथ ही रिएक्ट कर जाती है, सोडियम एंड पोटेशियम। तो पोटेशियम और सोडियम को रिएक्टिविटी सीरीज पे टॉप पे रखा हुआ है क्योंकि वो हर किसी के साथ रिएक्ट करती रहती है। इसी तरह से अब गोल्ड एंड सिल्वर है, वो रिएक्ट नहीं करती, उन्हें रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे रखा गया। अब जैसे हमने वाटर के साथ देखा था, वाटर के साथ जो रिएक्शन मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कुछ मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाती है, कुछ मेटल जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, कुछ मेटल जो है वो ना कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर, वो गैस के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करती है गैसियस फॉर्म में, और कुछ मेटल्स तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करती। तो वो उस बेसिस पे केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करके रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है मेटल्स की, जिसे कि हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इसमें और हम नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, जो आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है, अब जैसे कॉपर है, अब मैंने आपको देखो ये बोला कॉपर प्लस HCl, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कॉपर को मैं ZnSO4 में डालती हूँ, देन अगेन नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर। लेकिन अभी मैंने एक रिएक्शन लिखी थी Cu प्लस AgNO3, अगर आपको याद हो तो इसमें हमारा क्या बनेगा, CuNO3 प्लस Ag। अब इसके साथ रिएक्ट कर गया कॉपर, इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करना, यानी कि कुछ रिएक्टिव है और कुछ हद तक ये रिएक्टिव नहीं भी है। अब जो कॉपर है वो सिल्वर से तो ज्यादा रिएक्टिव है, बट यहाँ पे कॉपर जिंक से लीस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, तभी ये रिएक्शन नहीं हुआ, ये इसे डिस्प्लेस नहीं कर सका। इसी तरह से कॉपर की मैं हाइड्रोजन एक्सक्यूज मी, कॉपर की मैं हाइड्रोजन के साथ भी कंपैरिजन कर सकती हूँ कि कॉपर जो है हाइड्रोजन से भी लीस्ट रिएक्टिव है, तभी इसने इसे डिस्प्लेस नहीं करा। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे अब कॉपर इसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के इस तरह से केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है, राइट। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको लर्न करनी है, दैट यू हैव टू लर्न दैट रिएक्टिविटी सीरीज। तो फर्स्ट नंबर पे इसमें आपका आएगा बच्चे के इज द पोटेशियम, सेकंड पे आपका आएगा Na इज द सोडियम, थर्ड पे आपका आएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम जिंक, आयरन, Sn इज फॉर टिन, लेड, हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन के बाद आपका आएगा कॉपर, कॉपर के बाद आपका आएगा मरकरी, कॉपर मरकरी, और लास्ट में आपके आएंगे बच्चे सिल्वर एंड गोल्ड। ये सबसे लास्ट में, नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब इसमें जो ये वाली है, ये तो हम इसे कह सकते हैं दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल है क्योंकि ये सबसे नीचे है, ठीक है। अब ऊपर वाले में हम आपको बता सकते हैं कि जो ऊपर वाली रिएक्टिव है ये दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी क्या हो रही है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं रिएक्टिविटी इज डिक्रीजेस। अब आपको कॉपर का एग्जांपल उसमें बताया था, कॉपर देखो ये रहा, ठीक है, कि कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर के ऊपर हाइड्रोजन आ रहा है, दैट मींस हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, व्हाई, बिकॉज कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव, जो लीस्ट रिएक्टिव है वो नहीं कर सकती, जो मोर रिएक्टिव है वो कर सकती। कॉपर का जिंक के साथ भी आया था Cu प्लस ZnSO4, नो रिएक्शन बिकॉज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन जिंक, बट कॉपर प्लस AgNO3 आया था क्योंकि ये Ag, ये कॉपर Ag को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि वो उसके नीचे है। तो जो मेटल यहाँ पर है उसके ऊपर वाली वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकते, अपने से नीचे वालों को वो डिस्प्लेस कर सकते हैं क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है, उससे जो ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है, वो नहीं कर सकते। तो किसी मेटल के जो नीचे पोर्शन है उसे तो वो डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाले को नहीं कर सकता, बिकॉज अगर ऊपर जा रहे हैं तो रिएक्टिविटीज इंक्रीजेस, नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटीज decreases. So this is the reactivity series which is made by the scientists according to the chemical properties of the metal.
तो इसमें आपके कई जैसे सिम्टम्स ये होंगे कि ऐसे लर्न करो वैसे लर्न करो, आप कहीं टेक्निक से आप इसे लर्न कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है यूजेस ऑफ मेटल्स, कि वी हैव द डिफरेंस ऑफ मेटल्स टिल नाउ, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज मेटल? आयरन, आयरन जो है आपकी कंस्ट्रक्शन में, मशीनरी में, टूल्स में, बिल्डिंग्स में, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, एलॉयज में यूज किया जाता है। इसकी लो कॉस्ट है, हाई स्ट्रेंथ है, रस्ट प्रूफ है। कॉपर, कॉपर हम कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज करते हैं, एंड यूटेंसिल्स में भी यूज किया जाता है, स्टीम के पाइप्स बनाने में भी इसे यूज किया जाता है। फिर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है यूटेंसिल्स बनाने के लिए, फॉइल्स बनाने के लिए, एलॉयज बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट में उनकी बॉडीज को बनाने के लिए एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है, वायर्स में भी यूज किया जाता है, फॉइल रैपिंग द फूड मटेरियल यूज किया जाता है। उसके बाद जिंक, जिंक इज यूज टू गैल्वनाइज, गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो कि रस्टिंग से प्रिवेंट करता है, ठीक है। लेयर, उसमें जिंक की लेयर बना देते हैं आयरन के ऊपर, जिससे कि वो प्रिवेंशन होती है। तो जिंक इज यूज टू गैल्वनाइज, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द कंटेनर्स ऑफ द ड्राई सेल्स, जो ड्राई सेल्स के कंटेनर्स होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जिंक का जो होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। गोल्ड ज्वेलरी में यूज किया जाता है, सिल्वर ज्वेलरी में, फॉइल्स बनाने में, डेकोरेशन के ऊपर, स्वीट्स में, अब तो नहीं यूज करते, पहले करते थे। मरकरी थर्मोमीटर्स में यूज किया जाता है, बैरोमीटर्स में यूज किया जाता है मरकरी को। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स में, लैब में, ज्वेलरी में यूज किया जाता है, एंड इट इज द लीस्ट रिएक्टिविटी एंड हाईली कंडक्टिविटी, राइट। और मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में आता है, आपको बताइए। लेड, लेड इज यूज इन मेकिंग द कार एंड इन्वर्टर बैटरीज, कार और इन्वर्टर की बैटरीज में लेड, पीबी, ठीक है। इसे कार की बैटरी, पाइप्स इसके बनाए जाते हैं कोरोसिव केमिकल्स फैक्ट्रीज में। सो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है लेड की, कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और बैटरीज में यूज किया जाता है बैकअप पावर सप्लाई देने के लिए इसे। तो ये यूजेस हैं, ये भी आप थोड़े पढ़ लेना। सो मेटल्स यहाँ पर आपकी फिनिश है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई टेल यू अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। तो थैंक यू बेटा।